Good evening, everyone. Welcome back to today's book reading session. Before starting our session, let's do a short meditation. Sit back comfortably, close your eyes, let your body relax. Take a deep breath in, and as you exhale, relax your body. Relax your shoulders. Keep your hands in your lap. Just focus on breathing at this moment. Breathe the air that I am inhaling and exhaling has life giving force in it. And I am giving this precious gift free of cost. Don't take your breath for granted because this breathing is the charging cable for our body. Breathe fully. Fill your lungs, your abdomen, diaphragm. Fill it completely and slowly exhale. Try to come to the present moment. Feel your hands touching your lap. Try to see what's in front of you with your eyes. Try to listen to whatever music it is. You can listen to the ripple effect of water in the background. Engage your senses to the present and you will find your awareness to increase. It boosts your confidence and concentration. The present moment is the actual present in our life. Live it fully. Affirm, today I will be in the present as far as possible. I will engage my all senses to whatever task I am doing. My best efforts. I have everything I need and I am fully satisfied. All is well in my world. Om Shanti. Whenever you are ready, rub your palms
and put them on your eyes, on your face. Feel the blessings of the infinite. Shanti. Thank you. Let me share my screen now. So, yesterday we started with chapter 5, the physics of uncertainty. Let's recall the concept of quantum physics that we studied yesterday. So, in quantum physics, we deal with subatomic particles. The subatomic particles are protons, electrons, and neutrons. The protons and neutrons stay closely bound to the center of the atom while the electrons revolve around them, like the planets revolve around the sun. And we also discussed about double slit experiment in which when the scientists observe the subatomic particles, they suddenly collapse. But when we leave them unobserved, it creates a spooky or strange effect in them. So, what is making us understand through these what modern science does not yet fully understand is that the strange quantum behavior may hint at something profound. So, we learned about the quantum behavior, and now we will delve deeply into its philosophical aspect, where we understand that if the very building blocks of matter can exist in states of pure probability until they are observed, then reality itself is not as rigid as it appears. So, when we observe the subatomic particles, we see them as rigid, but reality itself seems like rigid in our life. What we see in the world, it seems like rigid. But when we leave them unobserved, the subatomic particles behave strangely. We see a bizarre behavior. So, in our reality, also, even the most finite things in the universe will be influenced by consciousness, intention, or awareness. This opens the door to the idea that we are not merely passive observers of reality but active participants in shaping it. The flow of events then may not be random but can be guided in ways that align with deeper, timeless principles, the very eternal rules we are discussing today. So we have the power to shape our reality. And how can we shape them? Through flow of events. We can give our best in life. The flow of events that are happening in our life may not be random, but can be guided in ways that align with deeper timeless principles. तो यहाँ पे ऑथर हमें क्या समझा रहा है कि जो हमारी लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं हमें ऐसे लगता है ना कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है पर ये रैंडम नहीं होकर ये सब गाइडेड भी हो सकते हैं बहुत ही डीपर टाइमलेस प्रिंसिपल्स क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या होना सही है तो जो सुप्रीम को पता है उनसे अलाइन होकर के क्योंकि हम सब अलाइन है हमने अद्वैत वेदांत में पढ़ा कि जो भी इंडिविजुअल सोल्स है आत्मन और ब्रह्मन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोनों अलग नहीं है इसीलिए हम भी उन सुप्रीम से कनेक्टेड है तो वो जो डीपर टाइमलेस प्रिंसिपल्स है उन्हीं से अलाइन हो करके हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीजें होती हैं ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं हमारा बुरा हो रहा है पर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि वो सब गाइडेड हो हमारे अच्छे के लिए हो ये वेरी इटर्नल रूल्स और ये इटर्नल रूल्स है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे
तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, एक बार रिविजन कर लिया। अब आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गॉड विद अ thoughtful smile. Take sodium and phosphorus atoms. The only difference between them is the number of protons, neutrons, and electrons within the atom. At the quantum level, these particles exist as probabilities with atoms. If one could influence these energy fields, then in principle, sodium could reappear not as sodium but as phosphorus. This shows how reality at its core is fluid, allowing for a great deal of manipulation. गॉडिक थॉटफुल मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम फॉस्फोरस एटम्स के बारे में समझाते हैं कि दोनों के बीच में सिर्फ नंबर का डिफरेंस है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के एटम में है और कौन से फॉस्फोरस के एटम में है। पर क्वांटम लेवल पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रोबेबिलिटी वेव्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जो कि कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं जब हम उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो कल जो एग्जांपल लेकर के प्रोबेबिलिटी को समझा, आज भी वही करेंगे। अगर हम एक कॉइन को स्पिन कर रहे हैं, एक सिक्के को ऐसे घुमा रहे हैं, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी क्या है कि 50% हो सकता है हेड है, 50% टेंस है। लेकिन जिस मोमेंट पर, तो ये जो प्रोबेबिलिटी वेव्स की तरह ये चल रहा है, तो हम इसको भी ऐसे ही समझेंगे कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्रोबेबिलिटी चल रही है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो सिक्का घूम रहा है उसके ऊपर अगर आप अपना हाथ रखेंगे, जैसे ही आपने उसके साथ इंटरैक्ट किया, वैसे ही जो प्रोबेबिलिटी थी वो कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। अब हम जब अपना हाथ उठा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हेड आया कि टेल आया। तो वैसे ही जैसे ही हम लोग इन एटम्स के साथ में इंटरैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, और हम एटम का पता लगा लेंगे कि ये सोडियम है, फॉस्फोरस है, जो भी। तो जब हम इन एनर्जी फील्ड्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जब हम इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सोडियम हमें वापस से रीअपियर हो सकता है एज फॉस्फोरस, है ना। जरूरी नहीं है कि सोडियम सोडियम ही रहे, फॉस्फोरस भी बन सकता है। जैसे अगर एक बार स्पिन करके एक बार हमने टॉस अगर किया, हेड आया, तो जरूरी नहीं अगली बार भी हेड ही आएगा, टेल्स भी आ सकता है। तो ये हमें क्या दर्शाता है कि जो रियलिटी है अपने एकदम कोर में, अपने एकदम डीपर नेचर में वो फ्लूइड है, जो कि हमें अलाउ करती है फॉर अ ग्रेट डील ऑफ मैनिपुलेशन। मतलब हम उनके साथ, उसके साथ इंटरैक्ट करके उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में हम इससे एक लेसन ले सकते हैं कि कभी भी हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि रियलिटी को चेंज करने की ताकत हम लोग रखते हैं। और वो डिवाइन जो पावर है, पोटेंशियल है, जैसे स्वामी विवेकानंद के चैप्टर में भी कल हमने पढ़ा था ना कि द डिवाइन इज विद इन यू, और हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। तो वही बात है, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और इस रियलिटी को भी हम चेंज कर सकते हैं। God, leaning forward, by manipulating atoms and subatomic particles, I can bring about change in ways both subtle and immense. I can spark genetic changes that cause birth defects in a developing fetus, cause a short circuit that ends the lives of thousands, or, on the other hand, heal the sick, restore damaged organs, and turn scared tissues into healthy living cells. Body work, spell healing, and spell transcription are ways to align with this deeper power, allowing you to heal your body, uncover long lost truths, and influence the course of your own destiny. All of this is made possible by the hidden, mysterious laws of quantum reality, the unseen rules that govern the particles and energy beneath all matter. Through them, even the seemingly impossible can be made possible. यहाँ पे गॉड समझा रहे हैं कि जैसे हम एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करके गॉड क्या करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं। वो सटल भी हो सकते हैं और इमेंस भी हो सकते हैं, छोटे मोटे सूक्ष्म भी चेंजेस हो सकते हैं, और बड़े बड़े चेंजेस भी गॉड हमारी लाइफ में ला सकते हैं। और इधर पे एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जैसे किसी बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, किसी डेवलपिंग फीटस, जब वो वुम्ब में ही रहता है,
बर्थ होने से पहले, तो उसी टाइम कुछ में डिफेक्ट आ जाते हैं, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे कि हजारों की जान चली जाती है। या फिर कोई जो बीमार है उसे हील कर सकते हैं, कुछ डैमेज्ड ऑर्गन्स होते हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं, जो टिश्यूज कुछ डैमेज हो गए हैं उनको हेल्दी लिविंग सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गॉड कर सकते हैं। तो उसके लिए तीन मेथड है, बॉडी लक, स्पेल हीलिंग और स्पेल ट्रांसक्रिप्शन। यही वेज है कि हम इन डीपर पावर के साथ में अलाइन कर सके, हमारे अंदर जो डीपर पावर है उसके साथ हम अलाइन कर सकते हैं मेथड से। जिससे कि क्या होगा, हम सिर्फ अपनी ही बॉडी को हील नहीं करेंगे, बल्कि हमें जो लॉन्ग लॉस्ट ट्रुथ्स है, बहुत पुराने जो ट्रुथ, जो सच्चाई है, कई सारे ज्ञान की बातें हैं, वो हमें वापस पता चल सकती है। हम अपनी डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वापस। जो हमारा प्रारब्ध होता है उसे हम बदल सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज मेड पॉसिबल बाय द हिडन मिस्टीरियस लॉज ऑफ क्वांटम रियलिटी। तो ये जो क्वांटम रियलिटी है, तो क्वांटम में कल भी हमने देखा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, इसको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते। पर ऐसा नहीं है कि जिस चीज को हम अपनी आईज से नहीं देख सकते वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसा नहीं होता ना। तो वैसे ही क्या है कि ये जो क्वांटम रियलिटी है ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये बहुत मिस्टीरियस है, हिडन है। लेकिन ये बहुत अनसीन रूल्स है, इसको देख नहीं सकते पर इसके रूल्स हमें गवर्न करते हैं, उन पार्टिकल्स को गवर्न करते हैं। और जो एनर्जी है हर मैटर के अंदर उसको गवर्न करती है, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम जो इम्पॉसिबल लगता होगा उसे भी पॉसिबल बना सकते हैं। ईशान, eyes wide, leaning forward. Pardon me, are you saying it's possible to regenerate tissue, like turning damaged liver cells back into healthy ones, just by controlling quantum outcomes? That sounds incredible. But how? How could you even begin to do something like that? We are talking about outcomes at such a tiny scale. How do you even reach that level of control? And what does Advaita Vedanta have to do with any of this? तो ईशान, अब जो इतने हमें ट्रुथ के बारे में पता चला कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उससे वो एकदम वाइड आइज के साथ पर्टिकुलरली आंखों करके वो सामने झुकते हुए बोलता है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हम टिश्यू को भी रीजनरेट कर सकते हैं, जो डैमेज लिवर सेल्स होते हैं उसको वापस से हेल्दी बना सकते हैं, बस क्वांटम आउटकम को कंट्रोल करने से ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं? ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहा है, पर हम कैसे करेंगे ऐसा? और हम ऐसे करना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो हाउ, हाउ वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। जब हमने भी ये चीजें पढ़ी है तो एक बहुत ही डीप प्रोफाउंड ट्रूथ हमें पता चला है, पर हमें भी ऐसा लगेगा ना कि ये कैसे होगा, कब होगा, हम कैसे कर सकते हैं। तो वही सब क्वेश्चन ईशान के भी मन में आ रहे हैं। और ईशान कह रहा है कि हम तो बहुत ही छोटे स्केल पे इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, पर उतना कंट्रोल हम कैसे कर पाएंगे? और अद्वैत वेदांत इन चीजों से कैसे करके कनेक्टेड है? तो अब गॉड आंसर कर रहे हैं विद द टोन ऑफ सर्टेनिटी, यू आर चैलेंजिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ अद्वैत वेदांत बाय फोकसिंग ऑन द स्केल ऑफ जस्ट वन atom. But now imagine that applied to an unimaginably vast number, quadrillions upon quadrillions of atoms, along with their countless subatomic particles, all being influenced and manipulated in this way. In Advaita Vedanta, the Atman, your innermost self, is the same as me. I am the root cause of all existence, the underlying force that governs classical physics, quantum phenomena, and the intricate web of interactions that sustain the entire universe. तो गॉड कह रहे हैं कि तुम अद्वैत वेदांत की पॉसिबिलिटीज को चैलेंज कर रहे हो, सिर्फ एक एटम पे फोकस करके। पर अब इमेजिन करना है हमें कि बहुत वास्ट नंबर है, क्वाड्रिलियंस अपॉन क्वाड्रिलियंस है।
तो और क्वाड्रिलियंस अपॉन क्वाड्रिलियंस ऑफ एटम्स है, और हर एटम के अंदर में बहुत सारे सब एटम, हर एटम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नंबर प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के। तो जब हम क्वाड्रिलियंस अपॉन क्वाड्रिलियंस इतने सारे एटम्स लेंगे तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो काउंटलेस हो जाएंगे, अगर हम सबका टोटल कर लेंगे सारे एक साथ मिला करके। और ये सब इन्फ्लुएंस होते हैं और मैनिपुलेटेड होते हैं इस तरह से। अद्वैत वेदांत में जो आत्मन है वो और ब्रह्म यानी गॉड दोनों सेम है। और हमने ये भी जाना है कि जो सुप्रीम बीइंग है, ब्रह्मन है, वही जड़ होती है, वही रूट होती है हर एक एग्जिस्टेंस की, क्योंकि उन सुप्रीम सोल से ही हम सब आते हैं, डिसेंड होते हैं। तो जो अंडरलाइंग फोर्स है, क्लासिकल फिजिक्स हो, क्वांटम फिनोमेना हो, और जो इनकी इंटरेक्शन हो रही है उसको गवर्न करते हैं, उसके उसके फोर्स कौन है? वो गॉड खुद है। ईशान विद अ ट्रेस ऑफ inquiry in his expression. I understand now, God. It's a bit difficult to accept initially, but it's starting to make sense now. तो ईशान कह रहा है कि मुझे अब समझ आ रहा है, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत हो रही थी समझने में, इसको एक्सेप्ट करने में, पर अब मुझे ये चीजें समझ आ रही हैं। तो कल भी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ी डिफिकल्टी हुई, पर जब आज हमने फिर से उस चीज को रिवाइज किया तो हमें वो चीज और अच्छे से समझ में आ रही है। तो वही होता है कि हमें एक नहीं दो तीन बार भी पढ़ना पड़ता है कई बार चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए। God smiling. Ishan, your thoughts, when powered by the soul, have the potential to heal and regenerate your organs, mind, dreams, and any part of your body. This forms the foundation of spell healing therapy, which we will discuss soon. Not only that, by influencing quantum outcomes, as in spell transcription, any physical medium can be manipulated, thereby uncovering long lost truths or unlocking radical technological breakthroughs. गॉड कह रहे हैं कि तुम्हारे जो थॉट्स होते हैं, जब वो सोल से पावर्ड रहते हैं तो उनके अंदर में पोटेंशियल आ जाता है, उनके अंदर वो ताकत होती है कि उनको हील कर सके और अपने ऑर्गन्स को, माइंड को, बोन्स को, सबको रीजेनरेट कर सके, वापस से जेनरेट कर सके बॉडी का कोई भी पार्ट। जब भी हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होंगे, पावर्ड बाय द सोल, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। और ये जो बात अभी कही गई है, ये फाउंडेशन होती है स्पेल हीलिंग थेरेपी की। जो मेथड्स हम सीखने वाले हैं उसमें से एक मेथड स्पेल हीलिंग भी है, जो कि अब हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। और हम स्पेल ट्रांसक्रिप्शन से क्वांटम आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि रियलिटी में क्या होने वाला है। तो वो स्पेल ट्रांसक्रिप्शन से चेंज हो जाएगा। और इस तरह से हम लॉन्ग लॉस्ट ट्रुथ्स को, रेडिकल टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज को भी अनलॉक और अनकवर कर सकते हैं, गॉड जेस्चरिंग थॉटफुली। I, as the Supreme Brahman, maintain the universe as per eternal laws, working silently by influencing quantum outcomes. This allows me to influence events in quite precise ways. I can, for example, by manipulating quantum outcomes, cause a device to malfunction, trigger genetic mutations that lead to cancer, or prompt a thought that gently shapes a person's decisions. Whether it's a world leader making a critical decision or an ordinary person navigating daily life, I can influence their actions and interactions. The quantum world offers me a flexible foundation through which the physical world can be influenced without force, just quiet adjustment. तो यहाँ गॉड थॉटफुली समझा रहे हैं ईशान को
कि जो गॉड है, वो जो सुप्रीम ब्रह्मन है, उनके पास में पावर होती है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को मेंटेन कर सके इटर्नल लॉज के हिसाब से। और वो साइलेंटली क्वांटम आउटकम को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो क्वांटम आउटकम को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? कोई इवेंट हो गया उसके फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि कोई भी डिवाइस है उसको मैल फंक्शन कर सकते हैं गॉड, और जेनेटिक म्यूटेशन को ट्रिगर कर सकते हैं जो कि कैंसर में तब्दील हो जाता है, या फिर किसी इंसान के जो डिसीजन है उसको जेंटली शेप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गॉड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटम वर्ल्ड होता है, इससे एक फ्लेक्सिबल फाउंडेशन मिलता है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में हम बिना फोर्स के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जस्ट क्वाइट एडजस्टमेंट हमें जरूरत है। Ishan, looking indirect, but God, why would you use quantum manipulation to bring about cancer in someone's body? ईशान बोल रहा है कि गॉड आप क्वांटम मैनिपुलेशन को यूज क्यों करते हैं कि किसी की बॉडी में कैंसर हो जाए? तो गॉड नॉट करते हैं वार्मली और बोलते हैं, माई सन, आई मेंटेन द कॉस्मोस एज पर इटर्नल लॉज। आई डोंट टेक साइड्स और am troubled by emotions such as compassion, love or pain. I simply manipulate the quantum world to bring about outcomes according to these laws. तो गॉड कह रहे हैं कि मैं इस कॉस्मोस को, इस पूरे ब्रह्मांड को इटर्नल लॉज के हिसाब से मेंटेन करता हूँ, और मैं किसी की साइड नहीं लेता। और मैं इमोशन से भी ट्रबल्ड नहीं होता, जैसे कंपैशन, लव और पेन। ये सब इमोशंस होते हैं ना, जिससे ह्यूमन बीइंग ट्रबल होकर अपने डिसीजन को चेंज कर देता है। तो गॉड के साथ ऐसा नहीं है। और वो सिंपली क्वांटम वर्ल्ड को मैनिपुलेट करते हैं ताकि इन जो लॉज के हिसाब से वो इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, उन लॉज के हिसाब से आउटकम मिल सके। As the shimmering particles around him pulse with a quiet certainty, Ishan feels a flicker of unease beneath his growing curiosity, a nervous feeling born from his lack of understanding of the vast, unchanging laws that govern even his own hopes. ये सब होता है। उसके बाद में बैकग्राउंड का दिखाया हुआ है कि जो शिमरिंग पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड में, इस क्वांटम वर्ल्ड में, वो क्वाइट सर्टेनिटी में बदल जाते हैं। और ईशान को एक अनईज वाली फीलिंग आती है, एक नर्वस वाली फीलिंग आती है, जो कि उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग की जो कमी है। मतलब जैसे हम लोगों ने भी ये चैप्टर पढ़ा है, तो बहुत लोग होंगे जिनको क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा पढ़ करके कि बाप रे, ये इतनी सारी चीजें होती हैं। और बहुत ही ऐसा हमें फील होता है कभी कभी कि हमें तो ज्यादा कुछ पता ही नहीं है, दुनिया में इतना कुछ होता है, यूनिवर्स ऐसे गवर्न होता है। तो वो वाली फीलिंग निशान को भी आ रही है, और ये जो अनचेंजिंग लॉज होते हैं, यही हर चीज को गवर्न करते हैं। तो ईशान की जो खुद की होप है अपने हेल्थ को लेकर के और दुनिया को लेकर के, उसको भी गवर्न ये अनचेंजिंग लॉज ही कर रहे हैं। Anatomy of chance. Scene. Ishan stands alone in the middle of a flooded river, water rushing past beneath a dark, churning sky. Floodwaters rise around his knees, swirling with debris and memories. From the rising waters, God's form energies reaches into the torrent and lifts him gently. The waters recede. Together they stand on dry ground. God, with a victorious grin, it's time to talk about body luck. The first and core governing principle in practical Vedanta. Ishan,
I want you to listen closely. What I am about to share may seem complex at first, and it might take some time to sink in fully. I'll introduce the concepts gradually and reinforce them through repetition to ensure complete understanding. And don't worry about remembering every word. When you wake up, you'll find a book titled Nirvana by your bedside, complete with all our decisions. For now, just focus on understanding and not memorizing. तो गॉड ये सारी चीजों के बाद में ईशान से कहते हैं कि अब हम बॉडी लक के बारे में बात करते हैं, जो कि पहला प्रिंसिपल होता है, पहला गवर्निंग प्रिंसिपल और कोर गवर्निंग प्रिंसिपल है प्रैक्टिकल वेदांत का। प्रैक्टिकल वेदांत नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। क्योंकि हम अद्वैत वेदांत के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अपनी डेली लाइफ में लेकर आ सकते हैं, डेली लाइफ में उसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस वजह से उसे प्रैक्टिकल वेदांत नाम मिला था। तो प्रैक्टिकल वेदांत का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है बॉडी लक। और गॉड उसे बहुत अच्छे से ईशान को समझाते हैं और कहते हैं कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, शुरू शुरू में हो सके कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स फील हो और थोड़ा टाइम लगे उस चीज को समझने में, पर ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो धीरे धीरे करके हमें समझाएंगे रिपीटेशन के साथ में, ताकि हमें पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। और गॉड के भी कह रहे हैं कि हर एक वर्ड को याद रखने के लिए चिंता मत करो, जब तुम जागोगे तो तुम्हें एक बुक मिलेगी अपने बेड साइड पे जिसका नाम होगा निर्वाणा। और इसके अंदर में हमारे सारे डिस्कशंस लिखे होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए किस पे ध्यान दो? अंडरस्टैंडिंग पे, मेमोराइज करने पे नहीं। ये जो निर्वाणा बुक के बारे में गॉड बात कर रहे हैं वही बुक हम अभी पढ़ रहे हैं। और इस बुक के ऑथर हैं जॉर्ज साइरेक, जिन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन भी लिया था। और हमने ये भी बात की थी कि जो भी आपको डाउट होंगे उनको नोट डाउन करके हम एक दिन जॉर्ज सर को बुलाएंगे और उनसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ईशान एक्साइटेडली। अच्छा, जो लोग यूट्यूब पर वीडियो वॉच कर रहे हैं उन लोगों के लिए, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। तो हम लोग we will try our best to answer it, all of you. Ishan excitedly. I understand, God. Thank you so much. God smiling proudly. As we discussed earlier, at the heart of every human cell and the cells of any living organism resides a tiny metaphysical entity called the soul. An organism, depending on its size and complexity, is often made up of trillions of these cells organized into various organs. As a result, a powerful metaphysical soul field exists within the body of every living being, whether it's a human, a dog, a cat, a plant, or any other organism. Various Hindu scriptures have detailed descriptions about the nature and properties of the soul. The Bhagavad Gita explains the soul's journey after death with a profound analogy. Just as a person discards old clothes and puts on new ones, so the embodied soul discards worn out bodies and enters new ones. The concept of soul was central not only to the Indian tradition but also to many other ancient cultures around the world. तो यहाँ सोल का बताया गया है कि जो सोल होती है हर एक ह्यूमन के अंदर में, उसके हार्ट में एक सोल रहती है। और ये टाइनी मेटाफिजिकल एंटिटी होती है जिसे हम सोल कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितना साइज है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस हिसाब से उसके अंदर में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सोल्स रहते हैं, जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे हम सब ने स्कूल में पढ़ा होगा कि बहुत सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो वही है जो यहाँ पे समझाया गया है। ये जो पावरफुल मेटाफिजिकल सोल होती है ये हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में, हर एक लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर में एग्जिस्ट होती है, चाहे वो ह्यूमन हो, डॉग, कैट, प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। और हिंदू स्क्रिप्चर्स में इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। भगवत गीता में
क्या समझाया गया है सोल की जर्नी को, कि जैसे कोई इंसान अपने पुराने कपड़ों को उतार करके नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही जो ये आत्मा होती है, हम सबकी जीवात्मा होती है, ये पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में एंटर करती है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना सोल का, ये बहुत सेंट्रल है। सिर्फ हिंदू ट्रेडिशन के सेंट्रल नहीं, पर हर एक एंशियंट ट्रेडिशन में सोल का कॉन्सेप्ट हमें सेंट्रली दिखाई देता ही है। God with a radiant expression. Ishan, you're about to realize that the good and bad things that happen in life are closely connected to your bodily health due to the divine nature of the soul. Yes, okay. और ईशान को कह रहा है कि अब तुम्हें रियलाइज होगा कि जो अच्छी और बुरी चीजें जो हमारी लाइफ में होती है, जो अच्छा और बुरा हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो घटित होता है, वो हमारी बॉडीली हेल्थ के साथ में बहुत क्लोजली क्लोजली कनेक्टेड होता है। क्योंकि हमारी बॉडी हेल्थ में हमारी सोल का डिवाइन नेचर भी होता है। तो ये जो हमारी लाइफ में चीजें होती हैं, ये रैंडमली ऑकर नहीं होती है। बॉडी लक इज द मेन रीजन बिहाइंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस इन अ पर्सन्स लाइफ। किसी भी इंसान के लाइफ में जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, उसका मेन रीजन है बॉडी लक, जो कि ऑपरेट करता है इन टू प्राइमरी मोड्स, बॉडी लक सिचुएशंस एंड इवेंट्स। तो इसके दो प्राइमरी मोड्स है, बॉडी लक सिचुएशंस और इवेंट्स। गॉड विद अ कंटेम्पलेटिव लुक, owing to the presence of the divine soul in every living cell, the current health status of one's bodily organs, both positive and negative, is constantly mirrored in the individual's external circumstances. तो हम हमारी लिविंग सेल के अंदर जो डिवाइन सोल है, उसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। और ये कॉन्स्टेंटली हमें दिखाता है, दिखाई कैसे देता है, हमारी लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बॉडी लग का पता चल जाता है। नेगेटिव साइड में क्या होता है कि इंटरनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि लो वाइटैलिटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्रॉनिक फटीग, फैटी लिवर, डायबिटीज, autoimmune disorders and other chronic conditions can manifest outwardly as। तो ये सारे इनर इंटरनल इम्बैलेंस है जो हमें बॉडी के अंदर में दिखाई देते हैं। और एक्सटर्नली कैसे दिखाई देते हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड और डाइवोर्स, फाइनेंशियल डेट, कोई इंसान डेट में फंस गया या उसके रिश्ते अच्छे नहीं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, वॉर है, युद्ध हो जाएगा, डिसहार्मनी, वर्क प्रेशर और सिमिलर हार्डशिप्स। तो ये नेगेटिव साइड है। गॉड विद अ नोइंग बुक, ऑन द पॉजिटिव साइड, हेल्दी इंटरनल ऑर्गन्स, और अगर बॉडी तक हमारा अच्छा, तो पॉजिटिव चीजें होंगी मैनिफेस्ट। तो इंटरनली हमें क्या दिखाई देगा कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी है, सेल्यूलर वाइटैलिटी है, फिर फिजिकल स्टैमिना है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, मेंटली हम बहुत क्लैरिटी से हम डिसीजन ले सकते हैं। और एक्सटर्नली कैसे मैनिफेस्ट होगा ये, मटेरियल वेल्थ, हमें वेल्थ मिलेगी, फिर मैरिटल हार्मनी, रिश्ते अच्छे होंगे, गुड रेप्यूटेशन, इंटेलेक्चुअल परsuade, पीस, हैप्पीनेस एंड अदर पॉजिटिव सिचुएशंस, ये सब मैनिफेस्ट होने लगेगा। These outward reflections, both positive and negative, of the body's internal biological condition is one's external circumstances is referred to as the body-like situation। बॉडी लक सिचुएशन क्या होता है कि ये जो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, और बॉडी की जो इंटरनल बायोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसकी हेल्थ की क्या कंडीशन है, इन चीजों को हम बॉडी लक सिचुएशन कहते हैं। बॉडी लक सिचुएशन सिग्निफाइज अ relatively steady positive or negative state within the body with minimal internal fluctuations or changes। तो बॉडी लक सिचुएशन हमें ये सिग्निफाई करता है कि हमारी बॉडी की क्या हेल्थ है,
और जो फ्लक्चुएशंस या चेंजेस होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं। रिलेटिवली पॉजिटिव या रिलेटिवली नेगेटिव स्टेट में ही हमारी बॉडी रहती है विथ मिनिमल इंटरनल फ्लक्चुएशंस और चेंजेस, ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। Today we will keep our session 10 here. On Friday we will read from God Causing Grief. Thank you so much for joining.